नाजरीन, स्मार्ट सिटी श्रीनगर की तब्दीली ने जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत को हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर कर दिया है। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 तक जब मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करके इसे 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया था, श्रीनगर शहर के वस्त में बंद, पथराव और अलहदगी पसंदों की तरफ से मुल्क मुखालिफ बयानात देने के लिए बदनाम था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के हालात और तकदीर बदल रही है। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। पिछले 3 सालों के दौरान न तो श्रीनगर ने बंद मनाया और न ही पथराव का कोई वाकया देखने को मिला और न ही किसी अलहदगी पसंद ने बगावत, अलहदगी पसंदी की तबलीग और अमन को खराब करने के लिए कोई साजिश रची है। स्मार्ट शहर अब मुतहर्रिक हो गया है और सरगर्मियों से भरा पड़ा है। इस शहर ने आहिस्ता आहिस्ता अपना खोया हुआ करिश्मा दोबारा हासिल कर लिया है और इस साल मई में G20 इजलासों की मेजबानी भी की। अब तक शहर भर में 80 से ज्यादा तामीराती मंसूबे चल रहे हैं। श्रीनगर में बड़ी सड़कों, रास्तों, साइकिल ट्रैक्स और निकासी के निजाम की असरनो तामीर की जा रही है। काम मुकम्मल होने के बाद ये जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत को बेहतर सहूलियात और साफ सुथरा माहौल के साथ एक नई शक्ल देगा। हुक्काम के मुताबिक प्रोजेक्ट का मजमूई बजट 3000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए पहले ही मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करने वाले लाइन डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड का बजट तकरीबन 1000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में IT से मुतल्लिका मदाखलतों, शहरी नक्लो हरकत में इजाफा, सड़कों को बेहतर बनाने और शहर भर में अवामी नक्लो हमल की सहूलियात को अपग्रेड करने पर तवज्जो मरकूज करने वाले मुतादिद पेन सिटी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल 2 साल का इसमें लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन एज फार एज द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न एंड मोस्ट ऑफ दिस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड बाय वे ऑफ दैट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. So we have been working on the riverfront, Jhelum riverfront. Jhelum riverfront in a way is one of the main spines in the city around which city is located. So that's been one part of the work. And most of it is complete. Some work is remaining that we are again expecting to be completed in the next couple of months. And riverfront, the portion which is complete, the left riverfront, that's become a big hit, and every day thousands of people gather there. Similarly, the central business district of the Srinagar city, which includes our Residency Road, MA Road, Jahangir Chowk, Lal Chowk, Batamalu, Kamarwari, Mominabad, Karanagar, all this area is again getting a major urban renewal. See, if you look at the Residency Road or Lal Chowk, which is very historic and somehow forms the heart of the entire Srinagar city, we have done undergrounding of electricity lines, communication lines, drainage networks, sewerage networks, and then a lot of pedestrianization is happening. In fact, I would say that the investment in non-motorized transport, in cycling and in walking infrastructure that is happening in Srinagar city is unprecedented. If you see that last year, the first multiplex Inox started in Srinagar, and it's houseful on a daily basis. And similarly, there's need for more. I think now more cinema halls, single screens are coming up in almost every district in the J&K. And people want to have some avenues for entertainment, some avenues for this. And I think long back there used to be a time when newspaper would carry posters of all the Bollywood movies that were getting released. And I think that time is coming back. And now with the kind of youth engagement, with the kind of youth involvement in all these things, it's phenomenal. I'll just give you a little example. I think a couple of 3-4 months back we started with this public bicycle sharing system that now we have around 100 cycling stations across the city. So entire city is connected with that cycling network, and cyclists are available at a docking station. Very nominal charge, free for half an hour, 5 rupees thereafter, 10 rupees for beyond an hour, something like that. Very nominal charges. So initially there was huge apprehension whether this will work or not, and we got thousands of, I think around 20-25,000 registrations in which people paid 300 rupees upfront at the time of downloading the app. श्रीनगर का एक वीरान शहर से एक मुतहर्रिक कारोबारी मरकज में तब्दील होना इस बात की अलामत है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, जिसने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का मुशाहिदा किया
1990 से 2019 तक श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कई मुकाबले हुए, जिनमें शहर का मरकज लाल चौक भी शामिल है। दहशतगर्दों ने पुरहुजूम मकामात पर खुदकुश हमले और ग्रेनेड फेंककर जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल-हुकूमत को तबाह करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पिछले 3 सालों के दौरान हुकूमत ने माजी के निशानात को मिटाने के लिए मिशन पर काम शुरू किया है। पुराने ढांचे की तज़य्युन व आराइश की गई है। हाल ही में श्रीनगर के कल्ब में पोलो व्यू मार्केट मुकम्मल हुई है और ये बाजार जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल-हुकूमत की हेरिटेज मार्केट बन गया है। श्रीनगर शहर के तिजारती मरकज लाल चौक को भी नई शक्ल दी जा रही है। तारीखी घंटा घर, क्लॉक टावर की तज़य्युन व आराइश के बाद नई घड़ियां, नई छत की सजावट और अहम अपडेट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले मिलेगी। श्रीनगर शहर जो कभी दहशतगर्दी का गढ़ था, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नया जम्मू कश्मीर की अलामत के तौर पर उभरा है। वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जैसे आप देखें, हमारा जैसे पोलो व्यू है, पिछले कुछ महीने पहले इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। सो वी सी अ वेरी बेटर चेंज, अ वेरी गुड चेंज। यहाँ पर पेडेस्ट्रियन मार्केट बन गया है, वायर फ्री मार्केट बन गया है। सो हम एज अ बिजनेस कम्युनिटी अगर आप देखें, सो इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर सेल्स, इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। और G20 का इवेंट रिसेंटली हो गया, सो दैट हैज़ ऑल्सो एडेड अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ पोलो व्यू मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट वाज रियली गुड। और अगर आप देखें, हमारा रिसेंटली रिवर फ्रंट भी इनॉग्रेट हो गया है अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ एडेड वैल्यू टू श्रीनगर, टू कश्मीर। क्योंकि पहले ऐसा होता था, वी हैड नो प्लेस टू गो एज अ फैमिलीज, देयर वर नो फैमिली प्लेसेस जहाँ पर हम जाएं। एक पुरअमन और दोबारा सर उठाने वाला श्रीनगर हजारों की तादाद में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जिसके नतीजे में मकामी मईशत को बहुत जरूरी फरोग मिल रहा है। जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कई तरीकों से पुराने श्रीनगर की बहाली की तरफ एक कदम है, जब सब कुछ बहुत पुरसुकून था। खूबसूरती भी आ गई है। रोड्स में जो जहाँ जहाँ उनको लगा था, जहाँ खंडर हो गए थे, वहाँ मैग्डमाइज्ड हुए हैं। तो अब जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा रहा। बड़ी बारिश के भी इसमें बहुत सारा दखल रहा। कभी इनमें थोड़ा वो रॉ मटेरियल का मसला रहा, तो इसकी वजह से जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था, उस हवाले से उनको थोड़ा मतलब वो उस समय तक नहीं कर पाए। लेकिन अब तो मुझे लगता है पाए तकमील की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो खूबसूरती है। काबिल जिक्र बात यह है कि श्रीनगर ने नवंबर 2021 में दस्तकारी और लोक फन के जुमरे में UCCN में जगह हासिल की। ये एजाज हासिल करने वाला दुनिया भर में 49 ममालिक की फहरिस्त में से हिंदुस्तान का वाहिद शहर है। 2021 तक कुल 246 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। ख्याल ये है कि ऐसे शहरों की तामीर की जाए जो लचकदार, पायदार और मुस्तकबिल का सबूत हो। श्रीनगर मकामी सतह पर पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे की भी हिमायत कर रहा है। कुल मिलाकर 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल के साथ साथ तरक्की का एक नए दौर का आगाज किया है। न्यूज़ 18 के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर जब पहले अलहदगी पसंदों के साए में था, अब अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। खास तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू में 84 सनती यूनिट्स और कश्मीर में 34 यूनिट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि वो तरक्की और नमू के एक नए दौर का मुशाहिदा करेंगे और दीगर शोबों के अलावा हुकूमत की इस यकीन दहानी से सनतकारों में काफ़ी उम्मीदें पैदा हो गई थीं कि अब जम्मू कश्मीर में मौजूदा और नई दोनों सनतें परवान चढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी जो 2021 में मुतारिफ कराई गई थी, इसका एक मकसद सनत के लिए एक साजगार माहौलियाती निज़ाम बनाना था जो तवज्जो मरकूज करने वाले शोबों में सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है, जिससे पायदार, मसावी, माहौल दोस्त और मुतवाज़िन सनती तरक्की हो सकती है, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। आमदनी पैदा करना और आदाद शुमार को देखकर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सिमत में हुकूमत के ठोस इक़दामात जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर
अच्छे नताइज बरामद कर रहे हैं, जैसा कि जम्मू में 84 और कश्मीर में 34 नए सनती यूनिट पहले ही अपनी पैदावार शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 370 जाने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उन्होंने इसको वेलकम किया था, और देखिए कि उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में एक पैकेज अनाउंस कर दिया था, उसमें 28,400 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव दिए गए वो ऐसे इंसेंटिव थे कि वो पूरी कंट्री में आज तक किसी को नहीं दिए गए। इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि, और उससे क्या हो रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, लोगों को लैंड अलॉट हो चुकी है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो जिनमें लैंड अभी डेवलप हो रही है उसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इनके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 70,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल इनको आ चुके हैं। 84 यूनिटों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है जम्मू में, 34 ने कश्मीर में कर दी है। हुकूमत के पास 70,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ मौजूद है जो जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए तैयार है। बहुत जल्द वो अपने यूनिट भी शुरू करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सनती इकाइयों को हुकूमत की तरफ से बहुत से फवाइद और मुराद मिल रही हैं, जिनमें प्लांट और मशीनरी की लागत पर 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी शामिल है। मजीद बना सनतकारों को अब GST रिफंड भी मिल रहे हैं, जिससे उन्हें जम्मू कश्मीर में मजीद सरमायाकारी करने की तरगीब दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर में मुलाजमत के 5 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है, उसके लिए सेंटर से पैसे की कमी नहीं है। और हेल्थ सेक्टर में देखिए मीरा साहब में 100 कनाल ज़मीन के ऊपर हमारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। टनल्स का काम देख लीजिए, जो टनल्स पिछले 70 साल में नहीं बनी, आज ज़जीला के काम, श्रीनगर जम्मू का रास्ता कितना छोटा हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी ये समझा कि जिस तरह से मुल्क भर के बड़े सनतकारों ने जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है, इससे मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। लेकिन उन्होंने हुकूमत से भी अपील की कि वो तरक्की पर तवज्जो मरकूज करे। जम्मू कश्मीर यूटी की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए छोटे पैमाने की सनत भी जरूरी है। नई इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जो MSME यूनिट्स हैं उसकी भी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब कम एम्प्लॉय भी हैं लेकिन एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दील ना हो जाए, इस बात की चिंता जो है वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि उन्हें अपनी अहलियत और तजुर्बात के मुताबिक बेहतर मुलाजमतें मिलेंगी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं और अगर नई सनतें जम्मू कश्मीर में पनपती हैं तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इंडस्ट्री लगना ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। अगर ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो प्राइवेट्स में जॉब तो बढ़ेंगी, लेकिन सिर्फ मेरा कहना है मतलब मेरा ये मानना है कि इनको अगर सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पहले, अभी भी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ, तो अगर कम पढ़े लिखे बंदे को या एवरेज पढ़े लिखे बंदे को अगर उसके पढ़े लिखने के हिसाब से उसको सैलरी मिले तो हर एक बंदा जो है वो प्राइवेटेशन प्रेफर करेगा। देखो इंडस्ट्रियों की बात जहाँ तक की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने 2017 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद से लेके यहाँ तक बहुत सारी उम्मीदें लेके हम बैठे हैं, नौकरियाँ तो है नहीं। इंडस्ट्रियाँ अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे श्रीनगर के लिए आ रही हैं, जम्मू के लिए आ रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, लेकिन यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आए। जम्मू कश्मीर में सनत को मजीद फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने जम्मू खित्ते के कठुआ इलाके में सनती जोन भी फराहम किए हैं। मजीद बरां जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नई सनतें लगाने की नई तजवीज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो पहले अच्छी मुलाजमतों के हुसूल में मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहा था, अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। मजीद अच्छी मुलाजमतों की तलाश में जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
कई ऐसे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी शुरुआत कर दी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगा, इनकम जो है वो बढ़ेगी लोगों की। तो ये आप देख सकते हैं कि 370 के बाद जो बदलाव आए हैं अब वो सामने दिखने लगे हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खास पेशकश का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। languages. कुल्लू और मंडी जिले के सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की वादी कश्मीर में पथराव के वाकयात जो आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले एक मामूल बन चुके थे, पिछले 4 सालों में सिफर पर आ गए हैं। वादी में मुसलसल पथराव के वाकयात की वजूहात क्या थीं और इसे सिफर तक कम करने के लिए किन इक़दामात की जरूरत है, तफसीलात के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। दो 2018 तक श्रीनगर शहर और वादी के दीगर हिस्सों में पथराव के वाकयात बाकायदगी से देखे गए। दस्तयाब आददोशुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 2018 के दौरान पत्थरबाजी के 1767 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। पथराव में कमी आई और सिफर पर आ गई। दो 2003 में वादी कश्मीर में पथराव का एक भी वाकया पेश नहीं आया। इसके नतीजे में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में आ गई और वादी में पुरअमन सूरत हाल है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पथराव का इंतजाम कश्मीर में मौजूद अलहदगी पसंद अनासिर और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ओवरग्राउंड कारकुनों के जरिए पाकिस्तान ने की। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर कुलदीप खोड़ा ने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने से रोकने के दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को कश्मीर में बदअमनी जारी रखने के लिए स्टोन पेल्टिंग को तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त की रियासती हुकूमतों ने मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ नर्म रवैया अपनाया, जिसके नतीजे में पथराव के वाकयात लगातार जारी रहे। 2001 के बाद जैसे मैंने कहा कि टेररिज्म में काफ़ी पाकिस्तान निशाने पर आया, तो उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म को सप्लीमेंट करने के लिए स्टोन पेल्टिंग का एक तरीका अपनाया, जिससे कश्मीर में हालात डिस्टर्ब्ड रहे टेररिज्म के ज़रिए कुछ हद तक, और स्टोन पेल्टिंग ताकि एक अनरेस्ट रहे, माहौल ख़राब रहे कश्मीर में और ये इंटरनेशनल फोकस में चालू रहे। और जो आपने वजह की बात की, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे मैं बताना चाहूँगा। उसकी मेन वजह ये थी, एक तो कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो डायरेक्शन आती थी ओवरग्राउंड जो उनके वर्कर्स थे यहाँ पे, और सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो था यहाँ पे, उनके ज़रिए वो एग्जीक्यूट करवाते थे। फंडिंग बाहर के चैनल से आती थी। और जहाँ तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, वो मैं ये नहीं कहूँगा उनका कोई डायरेक्ट हाथ था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि वो इसको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। वो चाहते थे पेल्टिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए स्टेट में हो या सेंटर में हो उतना फॉलोअप एक्शन नहीं होता था पहले जितना अब हो रहा है। कुलदीप खोड़ा का कहना है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने अलहदगी पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के खिलाफ NIA और ED जैसी एजेंसियों की कार्रवाई के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद बिला किसी शक शुबा के, बिला किसी कन्फ्यूजन के एक डायरेक्शन आई कि जिसका इसमें हाथ है टेररिज्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट, ओवर्ट सपोर्ट, कोवर्ट सपोर्ट, लेस सपोर्ट, मोर सपोर्ट, जो भी जिस टाइप का इस टाइप का आदमी है जो इस शक शुबा और इसमें आता है उसको खिलाफ केस बनाया जाए, उसको बंद किया जाए। और आपने देखा होगा लार्ज स्केल अरेस्ट हुई और वो रिक्वायर्ड भी था। जब तक टेररिज्म को सख्ती से नहीं डील किया जाएगा तब तक ये बंद होने वाला नहीं है, और वही हो रहा है अब पिछले कुछ साल से, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। सिक्योरिटी माहिरीन का मशवरा है कि हुकूमत को बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन कायम हो सके और लोग मामूल की जिंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। 4 साल पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में आम सयाहत और मजहबी सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। वादी कश्मीर में रोजाना बड़ी तादाद में सयाहों की आमद हो रही है। टेंपल के शहर जम्मू में बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद देखी जा रही है। ज्यादातर यात्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। पेश है हमारे जम्मू नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। चार साल कबल आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। दहशतगर्दी का ग्राफ काफी हद तक गिर गया है और अब बड़े पैमाने पर लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी ने मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों को एक खूबसूरत और ठंडे माहौल में मयारी वक्त गुजारने के लिए बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने की तरगीब दी है। पिछले 4 सालों में एंटरटेनमेंट टूरिज्म की तरह जम्मू खित्ते में पिलग्रिमेज टूरिज्म में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। वैष्णो देवी यात्रा 1986 में 13,96,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो साल 2022 में 91,25,000 तक पहुंच गए हैं। 2017 में 81 लाख यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। अगर हम मौजूदा साल की बात करें तो 31 जुलाई तक 49,35,038 यात्री दर्शन कर चुके हैं। इस तरह श्री अमरनाथ यात्रा ने मौजूदा साल सिर्फ 30 दिनों में 4 लाख का हिस्सा छू लिया है। पिछले साल 3,65,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर में तिजारत, कारोबार और सनत से वाबस्ता लोग यात्रियों की सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफे पर खुश हैं। देखिए बहुत अच्छा है, जो है जा रहा है। सिक्योरिटी जो है मिलिटेंसी में कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टूरिज़्म बढ़ा है इस बार कश्मीर का। कश्मीर में भारी तादाद में जो है सैलानी आए और वापस अपने घरों को गए। अमरनाथ यात्रा में भी आए। लोगों में ऐसा जोश था कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, और टूरिज़्म जो है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो कोई दो राय है ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा जब आती है 50% जो है, जो अमरनाथ यात्री हैं, भोले बाबा के भगत जो है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। उससे भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आएंगे वो बोलते हैं कि हम माता जी के भी दर्शन करके यहाँ से जाए।
मिलिटेंसी की कवर जो है वो सरकार ने तोड़ी, इसमें कोई दो राय। 370 कई तरह से इट वाज ए रोड ब्लॉक फॉर मैनी रीजंस। खैर मैं उस बात की अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हुए और जम्मू कश्मीर में मोस्टली इट्स ए यू सी टूरिज़म ओरिएंटेड स्टेट। कश्मीर का टूरिज़म जो है वो अपनी जगह एक सीनिक ब्यूटी का है, वहाँ खूबसूरती का है। हमारे जम्मू में रिलीजियस टूरिज़म का है और ये दोनों टूरिज़म जो पोटेंशियल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पीक पर पहुँचे। पिलग्रिमेज टूरिज्म से वाबस्ता लोगों का मानना है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को तरक्की देने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। सड़क के राब्ते को बेहतर बनाया गया है, नए मजहबी मकामात का पता लगाया गया है और जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए भारी फंड्स खर्च किए गए हैं। लेकिन मजीद इकदाम करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में जम्मू जैसे इलाके इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। हमारे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म भी बढ़ रहा है, वाटर टूरिज़्म भी बढ़ रहा है और ये पिलग्रिमेज टूरिज़्म तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, फिर मचेल यात्रा अभी जस्ट कल परसों से शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमारी बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है और काफ़ी फुटबॉल इस बार अमरनाथ में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फुटबॉल देखने को मिला आफ्टर मुझे लगता है 5 इयर्स के बाद। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ जो बाकी की टूरिज़म प्लेसेस हैं या फिर पिलग्रिमेज टूरिज़म प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको थोड़ा मॉडिफाई करा जाए या उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको इंक्रीज करा जाए, उनकी वाइड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। सुधमा देव है हमारे पास, उधमपुर में पंचेरी है हमारे पास, वहाँ पे टेम्पल्स हैं हमारे पास। ऑन रोड हमारे जम्मू श्रीनगर ही चले जाएं तो बहुत से टेम्पल्स हैं जिनको अभी ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो व्यवसाय हैं मतलब पिलग्रिमेज को छोड़ के बाकी जो टूरिज़्म के जो चीज़ें बन सकती हैं उनको बनाया जाए ताकि जो बाहर से लोग हैं वो सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं आए। जम्मू जो है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने ताकि लोग यहाँ पे आएँ। जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी जाएगा तो 4 से 5 दिन रुकेगा, लद्दाख जाएगा तो सेम सिनेरियो है, बट जम्मू में कम से कम 3 दिन का एक पूरा पैकेज हो ताकि टूरिस्ट जो है वो मंदिरों के साथ साथ अनटच ब्यूटी अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को भी देखें। जम्मू कश्मीर के आम लोगों का ख्याल है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमती इक़दामात के अब बड़े नतायज सामने आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि मरकजी और जम्मू कश्मीर दोनों हुकूमतों की तरफ से यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए कुछ और इक़दामात किए जाएंगे ताकि ये आने वाले दिनों में ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें और आम लोगों के लिए आमदनी का जरिया बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।